لاہور میں کرونا کی انفیکٹیویٹی کی شرح 3% سے بڑھ کر 10% ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت تشویشناک ہے۔ پورے پنجاب میں 2000 سے زائد سمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے ہیں، جبکہ صرف لاہور میں 625 سے زائد سمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے ہیں۔ اگر یہ تعداد اسی طرح بڑھتی رہی تو کوئی چارہ نہیں کہ دوبارہ انتہائی سخت اقدامات کی نوبت نہ آ جائے۔ لاہور میں کرونا کے مریضوں کی تعداد تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور کے کرونا کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ اگر یہاں صورتحال تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے تو احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کی صورت میں کرونا کے پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خدا نخواستہ یہ معاملہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ یہ عوام کی صحت اور جان کا معاملہ ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت عوام کو کرونا سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے صوبہ بھر میں مختص ہسپتالوں کو ازسر نو فعال کر دیا گیا ہے۔ وینٹیلیٹرز اور دوسری سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ محکمہ صحت کو ضرورت کے مطابق آج ہی 1 ارب سے زیادہ کی بجٹ فراہم کیا گیا ہے اور تمام ہسپتالوں کو جون کی پہلی والی پوزیشن پر بحال کر دیا گیا ہے اور لاہور کے تمام ٹیچنگ ہاسپٹلز میں HDU کو بحال کر دیا گیا ہے اور جو متعلقہ انجیکشن کا سٹاک ہے اس کو بڑھانے کے لیے مزید انجیکشن خریدنے کے آرڈر دے دیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس ایکسپو سینٹر میں 300 سے زیادہ آکسیجن بیڈز اویلیبل ہیں اور ایکسپو سینٹر کو دوبارہ فعال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور پنجاب میں 1400 وینٹیلیٹرز موجود ہیں، جس میں 600 کے قریب وینٹیلیٹرز کرونا کے مریضوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پنجاب سردار عثمان بزدار میڈیا سے بات کر رہے تھے لاہور میں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کے مریضوں کی تعداد تشویشناک صورت اختیار کر چکی ہے اور اس طرح سے ڈیسیژن لیا جائے گا، قانون کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ باری باری کریں، آپ نہ شور مچے گا، بیٹے آپ شور مچائیں گے دوسرے کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ اپنی باری پہ سوال کریں، بھائی صاحب کو بول لینے دیں پھر آپ بول لینا۔ پورا شہر جو ہے وہ ایک قسم کا کل اور پرسوں سے پازیٹیو بنانے کی کوشش کی جائے کیونکہ لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے اور بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو کرونا گروتھ ریٹ ہے وہ الارمنگ سچویشن پہ آ چکی ہے۔ گورنمنٹ کی 2+2 کیٹیگورک پالیسی کیا ہوگی کہ ہم نے میٹرو پارک میں انٹر ہونے دینا ہے، ہم نے سڑکوں پر لوگ اکٹھے ہونے دینا ہے، نہیں ہونے دینا۔ اس حوالے سے کلیئر پالیسی کیا ہوگا؟ NCOC میں بھی بڑی کلیئر پالیسی آ چکی ہے، کورٹ آرڈر بھی آ چکا ہے۔ اب صرف اور صرف پروونشل گورنمنٹ نے بھی پالیسی دینی ہے کہ یہ ہماری گائیڈ لائن ہے، اس سے آگے کسی کو جانے نہیں دیا جائے۔ جی، اس سے پہلے ابھی میں نے جو آپ کو بات کی ہے کہ جو ہمارے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں اور NCOC کے فیصلے ہیں اور اس میں جو اس طرح کی جو بھی اسمبلی ہوتی ہے جہاں سے کرونا پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ ان لافل اسمبلی ہوتی ہے، تو اس سے پھر آپ دیکھ لیں گے جی ان لافل اسمبلی کو کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں PTI سے زیادہ بڑے جلسے کسی نے نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ نے دوسری بات جو کی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے۔ اگر کسی کو پرابلم ہے تو اسمبلی کے اندر آئے اور وہاں پہ تحریک اعتماد جمع کرائے اور پھر اس کو ہم مقابلہ کریں گے۔
आती है इसके हमारे से तय नहीं है, अवाम में कब आएगी? जी मैडम। बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि तीसरी फ्लाइट इस वक्त वैक्सीन की चल रही है और इंशाल्लाह जिस दिन वो मुकम्मल होगी हम उम्मीद रखते हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने के दरमियान में इंशाल्लाह ये मुकम्मल होती है। तो गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने पहले $150 मिलियन ऑलरेडी मखसूस किए हुए हैं और इमीडिएटली वैक्सीन परचेज की जाएगी और उसके मुताबिक देख के आपको पता है जो हाई रिस्क पॉपुलेशन उसको सबसे पहले दी जाएगी, यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स जो भी हैं उनको, जो लोग अब एज 55 है पहले उनको, और फिर इसी तरह बाकी सबको। पर लेकिन पूरे मुल्क के लिए कमिटेड है फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने वैक्सीन मंगाई। तो क्या सियासी अगर मुकदमा दर्ज नहीं, आप कहते हैं सियासत का बंद किया जाता है मुकदमा, तो क्या ऐसा कोई मुकदमा बनाया जा सकता है कि जो कोरोना एसओपी की वायलेशन करते हैं वो भारी जुर्माने आयद किए जाए, ये जो पीडीएम के जलसे हैं ताकि उससे गरीब आवाम को जो है रिलीफ मिल सके, उनसे रियायत की जा सके? जी, जो एसओपीज की वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने तो कानून को फॉलो करना है। मैंने पहले जो बताया था कि कोई भी इस तरह की असेंबली जिसमें लोग इकट्ठे हों जहाँ पे कोरोना का फैलने का खदशा हो, वो अनलॉफुल असेंबली होगी। तो अनलॉफुल असेंबली की कानून में तो इजाज़त नहीं है। सेकंड लास्ट मेरा आपसे ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप पीडीएम के 13 दिसंबर के जलसे पे तो फोकस कर रहे हैं जो मीनार पाकिस्तान पे होगा, लेकिन जो पीडीएम ने ये हर एनए में, नेशनल असेंबली के हल्के में एक जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया है लोगों को मोटिवेट करने का, तो क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा, सिर्फ मीनार पाकिस्तान के जलसे से फैलेगा? देखें, जहाँ जहाँ इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती है जो हम फील करते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं है, उसको कानून के मुताबिक उस पर एक्शन होगा। तो इसमें इस तरह की नहीं है कि सिर्फ एक जगह को फोकस किया गया, दूसरों को नहीं किया गया। और जो हमारे अपने पार्टी के जलसे थे, इस तरह की एक्टिविटी थी, वो खुद हमने कम कर दी हैं। तमाम एसओपीज़ फॉलो की जा रही हैं। जो भी सरकारी एक्टिविटीज़ हैं आप देखते हैं कि वहाँ इस तरह की जो गैदरिंग है उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन। नहीं हो पा रही, गवर्नमेंट एक्चुअली क्या कह रही है, एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कराना चाह रही है, बहुत ही कंफ्यूज किस्म की पॉलिसी नजर आ रही है। आपकी जिम्मेदारी है कि कोरोना फैल रहा है तो ये आपके पास इख्तियार है कि एसओपी पर इम्प्लीमेंटेशन कराकर उसकी केसेस की तादाद को कम किया जाए। देखें जी, इसके ऊपर एक पूरा हमारा ऑर्डिनेंस मौजूद है कोरोना के ऊपर जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है, और जहाँ जहाँ एसओपी की वायलेशन होती है एक्शन भी होता है। अब उसमें हमने उस तरह से क्रैक डाउन पूरा नहीं किया कि सब एक्टिविटीज़ जो हैं उसको हम बंद कर दें जिस तरह से है। हमारी तो पूरी कोशिश है कि हमारी बिज़नेस भी चलती रहें और हमारे जो मामलात ज़िंदगी हैं वो भी चलती हैं और लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो, और एसओपी फॉलो करें। अगर एसओपी फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल जो मैंने बताई है, इन्फेक्टिविटी रेट लाहौर में 3 से बढ़कर 10% और उससे भी ऊपर जा रही है, और जो ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ती जा रही है, उस सूरत हाल को भी सामने रखा जाए। ये फरमाइएगा कि ये दावे किए जा रहे हैं कि इस जलसे से पहले हुकूमत मुस्लिम लीग नून को कोई सरप्राइज भी दे सकती है। आपकी जानिब से भी आपके साथ राब्ते में है, तो क्या कोई इस किस्म का सरप्राइज देने का भी इरादा है? उसमें ये भी बात है कि 20 अफराद जो है वो आपके साथ राब्ते में है, पीटीआई के बाकायदा शमूलियत जो है वो करने जा रहे हैं, इसमें क्या मुश्किल है? मेरे ख्याल में आप सी एंड वेट वाली पॉलिसी पे चलें, अभी इंतज़ार करें, देखें क्या होता है, आपको भी बताएं। जो कुछ भी होगा, जो एक्टिविटी होगी वो आपके साथ शेयर करें। बट इतनी खबर है कि लाहौर के अंदर इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी अगले कुछ दिनों के अंदर। आपको यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ के लिए बड़ी चीज़ें आपको
देखने में मिलेंगी, वो आपके साथ दोबारा एक और नशिस्त करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, हमारा क्या प्लान है, हम किस तरफ जा रहे हैं, फिर आप हमारे साथ उस पर भी डिस्कस कर सकेंगे जी। कोरोना की देरी के दौरान आपने एहसास प्रोग्राम शुरू किया और लोगों की हेल्प भी की गई। अब फिर कोरोना की सेकंड वेव है, लेकिन एहसास प्रोग्राम और सेंटर से बजाय जो वो जमात में उनका स्वीट होम बंद कर दिया गया। वहाँ पर डेली बेसिस पे 100 से ज्यादा बच्चे अपने वालिदैन का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बात कीजिएगा मैडम, मुस्तकबिल छीन लिया, आपको स्कूल से आप कर निकाल लें। दिया और स्वीट होम बंद कर दिया है। आई डोंट नो आपके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है, इसको चेक करवाने की रिक्वेस्ट है आपसे। डेली बेसिस पे हमें इंतजार शर्तों में जी बिल्कुल, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ले लेंगे। लेकिन एक चीज थी कि पिछली दफा एक मुकम्मल लॉकडाउन था, जिसकी वजह से बहुत सारी बिजनेसेस जो थी वो रुक गई थी। दिहाड़ीदार तबका जो था उसने बड़ा सफर किया। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्टर साहब ने खास पैकेज शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपको हम लोगों के दरमियान बांटे गए, जिसकी वजह से जिस तरह को शोर खुद हमारे हमसाय मुल्क इंडिया में हुआ, ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ, ना पंजाब के अंदर हुआ। तो इंशाअल्लाह जरूरत पड़ी तो हर किस्म की और हम जरूर दें। की बस वाइंड अप करते हैं। इस वजह से लोग कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। एक तो जहाँ होता है वहाँ भी इतनी लापरवाही होती है और वहाँ किस दूर की बात वहाँ आना जाना ऐसा जैसे ना होने के बराबर होता है। ये जो पॉलिसी कब तक चली है, कहाँ पॉलिसी नहीं मैडम बता देंगे, लॉकडाउन स्मार्ट लॉक कैसे करना है कि लोग मजबूरी करोगे मैडम के पास। चीज समझी है, आप जब लॉकडाउन करते हैं तो जो लोग के पास सोशल सर्विसेज या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको इजाजत दी जाती है, क्योंकि वो कोरोना उनको जो कोरोना पॉजिटिव उनको वहां से मूव नहीं किया जाता और उनको फायदा पीछे रखा जाता है। हर बंदा जो कोरोना पॉजिटिव उसकी जब मूवमेंट होती है हुकूमत ने उसको रिकॉर्ड करता है और बाकायदा वार्निंग देता है। तो सिर्फ कोरोना नेगेटिव को जो काम कर रहे हैं उनको इजाजत दी जाती है ताकि रोजे मार्च के लिए वो घर से निकले, अपनी रोजगार के लिए निकले। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।